کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام دوسرے روز بھی جاری۔ آج 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ اموات کی تعداد 17 ہو گئی، 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ 10 سے 12 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ جائے حادثہ پر موجود لوگ امید کا دامن تھامے معجزے کے منتظر۔ سانحہ لیاری پر صرف 4 افسار معطل کرنے سے بات نہیں بنے گی، وزیر بلدیات کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی برس پڑے، کہا جب شہر مافیاز کے زیر تسلط ہو تو میئر کے تاخیر سے پہنچنے کا سوال بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو حادثے کی مذمت نہ کریں، ذمہ دار افسران کی مرمت کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کو جواب، بولی کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور بھتہ خوری کے پیچھے ایم کیو ایم ہے، اب مگرمچھ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا لیاری میں عمارت گرنے سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا اداروں اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بروقت اقدامات سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا لیاری میں جائے حادثہ کا دورہ، وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کا کہنا تھا کہ حادثے پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ چہروں پر مسکراہٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کی چہل قدمی۔ میزبان صدر نے تاریخی عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ توسا کے قریب سی ٹی ڈی کی فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائی، 5 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین، کہا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت، تجاوزات کے خلاف آپریشن اب کیوں شروع کیا؟ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا سوال، کہا پہلے پیسے لے کر تجاوزات قائم کیے، اب سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت میں شامل لوگوں کی تجاوزات گرائیں تو پتہ لگے۔ سوات میں 10 جولائی تک شدید بارشیں متوقع، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے کا ہائی الرٹ، دریائے سوات میں نہانے پر پابندی کے باوجود کئی مقامات پر خلاف ورزیاں۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی اور نوشہرہ میں بھی بارش ہوگی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں کل بادل جم کر برسیں گے۔ اٹک کے قریب دریائے سندھ میں پھنسے 30 افراد کو بچا لیا گیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ متاثرین شادی خان کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے پھنس گئے تھے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول کو سلام۔ شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا اہتمام۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد، لاہور میں جلوس روایتی راستوں پر گامزن، سیکیورٹی کے لیے کڑے انتظامات۔ کنٹرول روم میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، سیف سٹی کیمرہ سے مانیٹرنگ۔ موبائل سروس جزوی معطل رہے گی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 928واں سالانہ عرس۔ لاہور میں مزار کو غسل دینے کی تقریب کی تیاریاں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار داتا دربار پہنچ گئے۔ اور غزہ جنگ بندی معاہدہ آئندہ ہفتے ہونے کا امکان، حماس نے معاہدے کے لیے ثالثوں کو مثبت جواب دیا، کہا فوری طور پر مذاکرات کے ایک دور میں داخل ہونے کے لیے سنجیدگی سے تیار ہیں۔ امریکی صدر کا خیر مقدم بتایا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، ٹیرف کے معاملے پر 12 ممالک کے لیے خطوط پر دستخط کر دیے، پیر کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام دوسرے روز بھی جاری۔ آج 6 لاشیں نکالی گئی، اموات کی تعداد 17 ہو گئی، 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ 10 سے 12 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، جائے حادثہ پر موجود لوگ امید کا دامن تھامے معجزے کے منتظر۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے سانحہ لیاری کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی، کہا آصف زرداری اور بلاول بھٹو حادثے کی مذمت نہ کریں، ذمہ دار افسران کی مرمت کریں۔ آئے روز حادثات ہوتے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پیپلز پارٹی نے 17 سال میں کیا کیا؟ جواب دے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का भी जाए हादसा का दौरा। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का लियारी में इमारत गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, इदारों और लोगों को जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करना होगा। बर वक्त इकदामात से हादसा से बचा जा सकता है। गजा जंगबंदी मुआहदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। हमास ने मुआहदे के लिए सालिसों को मुस्बत जवाब दिया। कहा, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के एक दौर में दाखिल होने के लिए संजीदगी से तैयार है। अमरीकी सदर का खैर मकदम। बताया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया, मगर वो किसी दूसरे मकाम से दोबारा प्रोग्राम शुरू कर सकता है। टैरिफ के मामले पर 12 ममालिक के लिए खतूत पर दस्तखत कर दिए, पीर को इरसाल कर दिए जाएंगे। चेहरों पर मुस्कुराहटें, एक दूसरे का हाथ थाम कर यकजहती का इजहार। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की चहलकदमी। मेजबान सदर ने तारीखी इमारतों से मुतालिक आगाह किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के जवानों के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को सलाम पेश करती है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का वाक़या। दूसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मज़ीद 6 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 7 ख़वातीन भी शामिल। 8 से 10 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 2 फ्लोर्स का मलबा हटा दिया गया। तंग गलियों के बाइस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात। पाक फ़ौज की इंजीनियरिंग कोर का दौरा। इमारत के ढांचे, इस्तेमाल शुदा मवाद और दीगर तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया। 46 साल पुरानी इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। बदकिस्मत मकीन अपनों के बिछड़ने पर गम से निढाल। जिंदगी के लिए दुआएं, आहों और सिसकियों के साथ मदद की इल्तिजाएं। मेरी बेटी अंदर 3 महीने की बेटी निकली। ये सब चीजें मैंने जेल में दी थी अपनी बेटी को। चीजें मिल रही, बेटी नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो कि उन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जानें एट स्टेक हैं। ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इन इमारतों में रहते हैं। किसी को जबरदस्ती घरों से नहीं निकाल सकते। कमिश्नर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन का ऐलान। कहा, जिन इमारतों को नोटिस जारी किए उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक 12 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मुतासरा अफराद को सरकारी क्वार्टर में रखा गया है। लियारी में मौजूद 4 कम्युनिटी सेंटर्स में इंतजाम किए हैं। कराची माफिया के कंट्रोल में मैक्सिको सिटी बना दिया गया। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा, शहर में सैकड़ों मखदूश इमारतें हैं। करोड़ों का बजट रखा जाता है, मगर वो कहाँ खर्च होता है। आए रोज़ हादसात होते हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पीपल्स पार्टी ने 17 साल में क्या किया, जवाब दे। गजा जंगबंदी मुआहदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। हमास ने सालिसों को मुस्बत जवाब दिया। कहा, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से तैयार है। अमरीकी सदर का खैर मकदम। बताया, ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म हो गया, लेकिन वो उसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वजीर आजम से तेहरान के बारे में बात करूंगा। प्यूटन से गुफ्तगू में ना खुश हूँ। वो लोगों को कत्ल करने में बहुत आगे जाना चाहते हैं। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात हैं। बीजिंग से टिकटॉक डील के बहुत करीब हैं। मैं चीन का दौरा कर सकता हूं। शी जिनपिंग भी अमेरिका आ सकते हैं। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, खैमा बस्ती और स्कूल पर बारूद की बरसात। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। यमन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। हज़ारों अफराद की शिरकत। लकी मरबत में CTD बन्नू की कार्रवाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीपू गुल ग्रुप के 3 अहम दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे।
फैसलाबाद में CCD से मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियेव की मुलाकात। बाहमी तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मियाँ शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकातें। बाहमी ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। मियाँ शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। भारतीय फौज के नायब सरबराह ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मुतरफ। डिफेंस इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। भारत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। अल फतह मिसाइल ने हमारे फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की के कुर्बत से भी खौफज़दा। मोदी सरकार ने आशूरा पर महफूजा वादी में कर्फ्यू लगा दिया। शुहदाए करबला की याद और आज़ादारी को जुर्म बना दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी मोदी के निशाने पर है। कश्मीरी अवाम जुल्म के सामने डटे हैं और डटे रहेंगे। पाक फौज का वो अजीम अफसर, दुश्मन ने भी जिसकी बहादुरी का एतराफ़ किया। निशाने हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ की शहीद के मज़ार पर हाज़री। फूल रखे फातिह खानी की। कोट अदू के करीब ट्रेलर और बस में तसादुम। बस ड्राइवर और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। अमरीकी सदर ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल पास होने पर कांग्रेस को खराज तहसीन। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, अब हमारी सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हैं। 1 साल में कोई भी गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन हैमर में हिस्सा लेने वाले B-2 बम्बार तैयारों की व्हाइट हाउस के ऊपर फ्लाई पास। अमरीका के यौम आज़ादी पर जश्न। व्हाइट हाउस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों से तबाही। हादसात में हलाकतों की तादाद 24 हो गई। समर कैंप से 25 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 250 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 टाइटल जीत लिए। मोहम्मद सुहेल अदनान ने फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। अंडर 15 फाइनल में नोमान खान ने हमवतन अहमद रैयान को हराया। गर्ल्स अंडर 13 में पाकिस्तान की महानूर चीनी हरीफ के हाथों फाइनल हार गईं।